ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। 9 ਦਸੰਬਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ ਮਰਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗੇਂਸਟ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰਪਸ। ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰਪਸ ਦਾ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰਪਸ ਦਾ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 8848 ਮੀਟਰ 8848 ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1954 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 8848.86 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0.86 ਮੀਟਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਦੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ.com। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ.com ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵਰਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2020 ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ.com ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵਰਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਸੋਨੀ ਫਰਸਟ CEO ਬਣੇ ਨੇ WHO ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੈਨੀਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਹਾਨੋਮ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, WHO ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ WHO ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। WHO ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CEO ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਅਨਿਲ ਸੋਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਦਿਨਿਆ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੋਰੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਿਨਿਆ ਬੈਨਰਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ। ਹਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਫੀਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗਰੇਟ ਕੈਨਨ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ 90 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਰੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਾਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 3 ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਰਹੀ ਹੈ, 5th ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, पहली 3 प्लेस खाली, 4थे नंबर पर स्वीडन, 5वें ते यूके और इंडिया 10वें नंबर पर रही है। नैक्सट है सार्क की गल करते हैं, साउथ एशियन एसोसीएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका चार्टर डे कह सकते हैं, इसका फाउंडेशन डे 36वां फाउंडेशन डे ऑबजर्व किया गया 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर 1985 के ढाका बांग्लादेश के बनाया गया सी सार्क, जिसका हैडकुआटर हुण नेपाल काठमांडू दे विच है। इसके सैक्रटरी जनरल यानी कि हैड कौन ने? इसाला रूवान वीराकुन। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया द्वारा UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2020 जितया गया। इन्वेस्ट इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसनों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2020 दिता गया। हुण UNCTAD है जिहड़ी 1964 दे विच बनाई गई सी, जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच हैडकुआटर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जिहड़ी इसनों सिलेक्ट किया गया एज सुपर ब्रांड इन द UK फॉर 6th कंजीक्यूटिव ईयर। लगातार 6वें साल UK का बेस्ट ब्रांड नामित किया गया TCS नूं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ब्रेक डांस है जिहड़ा इसनूं ओलंपिक स्पोर्ट डिक्लेयर किया है फॉर द फर्स्ट टाइम एट 2024 पैरिस ओलंपिक्स। 2024 दे विच जिहड़े ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, समर ओलंपिक्स पैरिस दे विच कंडक्ट किए जाएंगे और उस दे विच ब्रेक डांसिंग पहली बार एज ए ओलंपिक स्पोर्ट पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है जी। ओलंपिक कमेटी का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हैडकुआटर लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच है। थॉमस बैच इस दे हैड ने। इसी दे नाल स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग ये 3 नवीं गेम्स भी ऐड की गई ने ओलंपिक दे विच। ये कदों की गई ने? 2021 टोक्यो गेम्स के लिए। 2021 टोक्यो गेम्स के विच ये 3 स्पोर्ट्स पहली बार पार्टिसिपेट करनगियां और ब्रेक डांसिंग 2024 के विच पार्टिसिपेट करेगी। नैक्सट है उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा एक नवा चैनल मनी मित्र लॉन्च किया गया। बैंकिंग सर्विसेज असैसीबल टू कस्टमर्स नूं बैंकिंग सर्विसेज असैस करवाने के लिए। उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडकुआटर बेंगलुरु कर्नाटका दे विच। RBI द्वारा करड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसल किया गया, जो कि महाराष्ट्र के हैडकुआटर है। ठीक है जी। इतने 2 न्यूज़ बाय मिस्टेक इकट्ठियां हो गई ने। राज चौहान इंडियन ओरीजन ने कैनेडा तो बिलोंग करते हैं। राज चौहान इंडियन ओरीजन पर्सन कैनेडा तो बिलोंग करते हैं। इन्हों स्पीकर इलैक्ट किया गया ब्रिटिश कोलंबिया लैजिस्लेटिव असैंबली का स्पीकर नामित किया गया। डॉक्टर समीर दमारे साइंटिस्ट ने CSIR दे विच काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च दे विच साइंटिस्ट ने इन्हों सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड दिता गया 2020 का फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा। USA के प्रेसिडेंट जो बिडेन द्वारा जनरल लॉयड ऑस्टिन नूं सिलेक्ट किया गया एज डिफेंस सैक्रटरी और ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन होंगे जो कि पेंटागन नूं लीड करनगे। बाला देवी फर्स्ट इंडियन वूमेन फुटबॉल प्लेयर बने ने जिन्हां ने प्रोफैशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग दे विच स्कोर किया गोल किया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन ने इंडिया के? किरण रिजिजू ने। इन्हां द्वारा 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट टर्फ 2020 ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि फिकी द्वारा इस दे विच एड्रैस किया, इस दे विच भाषण दिता गया कह सकते हैं। तो फिकी की गल करते हैं। फैडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 दे विच बनाया गया सी। उदय शंकर इस दे हैड ने। बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने, याद रखने।
मैसूरू कर्नाटका होस्ट करेगा 6th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। मैसूरू कर्नाटका होस्ट करेगा 6th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। श्री गुरु अंगद देव वर्टिनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना, श्री गुरु अंगद देव वर्टिनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना दे विच है, इसने फर्स्ट रैंक हासिल किया स्टेट वर्टिनरी यूनिवर्सिटीज़ दे विच, स्टेट वर्टिनरी यूनिवर्सिटीज़ दे विच। ठीक है जी, जिसनों रिलीज़ किया गया ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। और दूसरे नंबर पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रही है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर रही है। वैस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इन्हां द्वारा कंस्ट्रक्शन अप्रूव की गई है डीप सी पोर्ट ताजपुर की, ताजपुर जो कि वैस्ट बंगाल दे विच है, इसकी कंस्ट्रक्शन अप्रूव की गई है वैस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर द्वारा। सिंगापुर द्वारा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग है जी 2021 की होस्ट की जाएगी। बेसिकली हर साल जी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग है और देवोस स्विट्जरलैंड के होस्ट की जाती है, पर इस साल कोविड-19 के कारण इसनों सिंगापुर दे विच कंडक्ट किया जाएगा। ये कितनी मीटिंग होएगी? ये 51st मीटिंग होएगी, ये याद रखना इंपोर्टेंट रहेगा। लक्षद्वीप बिकम्स फर्स्ट यूटी ऑफ इंडिया, ये ऐसी पहली यूटी बनी है जी 100% ऑर्गैनिक है। डिक्लेयर किया गया है कि 100% ऑर्गैनिक चीज़ों का यूज़ करने वाली फर्स्ट यूटी लक्षद्वीप। कुवैत के आमिर शेख नवाब अल अहमद अल साबा, इन्हों रीअपॉइंट किया गया शेख साबा अल खैलद अल हमाद अल साबा नूं प्राइम मिनिस्टर। आमिर द्वारा कुवैत के आमिर रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, हुण इन्हां द्वारा जिहड़े इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर सीगे उन्हां नूं इन्हां ने रीअपॉइंट किया। श्रीलंका एशिया कप क्रिकेट का 2021 नूं होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान 2022 का एशिया कप होस्ट करेगा। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू विलेजिस के लिए अनाउंस किया गया कि इन्हां नूं कनैक्ट किया जाएगा। थारू विलेजिस किहड़े ने? बेसिकली यूपी के विच बलरामपुर, लखमीपुर और पीलीभीत एरियाज। थारू एक ट्राइब है जो कि यूपी, बिहार और उत्तराखंड के विच पाई जाती है। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थारू ट्राइब किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करती है। नेक्स्ट है दिल्ली वाराणसी मैट्रो रेल कॉरीडोर। दिल्ली वाराणसी मैट्रो रेल कॉरीडोर है जिहड़ा यह कनैक्ट करेगा मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर और जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जेवर एयरपोर्ट नूं यूपी दे विच बनाया जा रहा है और इसदे लई जुरीच एयरपोर्ट है जिहड़ा जुरीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड दे विच है, यह इसकी कह सकते हैं कि बनाने दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच हैल्प कर रहा है। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन दे विच नैशनल पार्क्स डिस्कस कर रहे हैं, इत्थे चेंज करना रह गया। नैशनल पार्क्स आंध्र प्रदेश दे विच पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा और राजीव गांधी नैशनल पार्क। पापीकोंडा नैशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नैशनल पार्क और राजीव गांधी नैशनल पार्क आंध्र प्रदेश दे विच। अरुणाचल प्रदेश नमदाफा नैशनल पार्क और मोलिंग नैशनल पार्क, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गए, नमदाफा और मोलिंग। असम दिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। मानस नूं वन हॉर्न राइनो सॉरस के लिए ज़्यादा फेमस है मानस नैशनल पार्क। इस तो इलावा रिसेंटली रायमोना नैशनल पार्क भी इंक्लूड किया गया असम दे विच, रायमोना नैशनल पार्क। इस तो इलावा असम दे विच ही एक होर नैशनल पार्क सीगा, मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहा है, चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। दिब्रू साइकोवा नैशनल पार्क, काजीरंगा नैशनल पार्क, मानस नैशनल पार्क, नामेरी और ओरांग नैशनल पार्क। ठीक है जी। अंडमान निकोबार महात्मा गांधी, सैडल पीक, नॉर्थ बटन और साउथ बटन। महात्मा गांधी, सैडल पीक, नॉर्थ बटन और साउथ बटन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नैशनल पार्क्स ने अंडमान एंड निकोबार के। इस तो इलावा होर भी नैशनल पार्क्स ने अंडमान निकोबार के विच, पर ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी। देहिंग पथकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नूं भी नैशनल पार्क बनाया जा रहा है असम दे विच। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सब तो पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कल के दिन ऑब्जर्व किया गया, यानी कि 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया गया।
थीम इंपॉर्टेंट रहेगी रिकवर बेटर, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। बेसिकली यूनाइटेड नेशनस द्वारा इस दिन ਨੂੰ ऑब्जर्व करना शुरू किया गया सी 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ इस दिन ਨੂੰ ऑब्जर्व करना शुरू किया गया सी 10th of December ਨੂੰ। हर साल इस दिन ਨੂੰ ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है जी, इस साल कह सकते हैं 71st इस एडिशन इस दिन का ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा बाकी इंपोर्टेंट दिन आप डिस्कस कर लेने हुणे 9 दिसंबर के रिलेटेड आप डिस्कस करके हटे एक होर इंपोर्टेंट डे, ठीक है, जीनोसाइड वाला। इस तो इलावा एंटी करप्शन डे भी 9 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया गया। 8 दिसंबर के रिलेटेड सार्क का डिस्कस कर लिया अपने। 36 फाउंडेशन डे। 7 दिसंबर की गल करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आप डिस्कस किया सीगा। इस तो इलावा आर्मड फोर्सिस फ्लैग डे भी डिस्कस किया 7 दिसंबर। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे आप डिस्कस किया सी, इंपोर्टेंट रहेगा 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, केड़े बैंक द्वारा आत्मनिर्भर वूमेन गोल्ड स्कीम शुरू की गई। आत्मनिर्भर वूमेन गोल्ड स्कीम, आत्मनिर्भर वूमेन गोल्ड स्कीम बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गई है। ठीक है जी, इस स्कीम ने शुरू किया गया है वूमेन गोल्ड स्कीम, आत्मनिर्भर वूमेन गोल्ड स्कीम बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हैडकुआटर वडोदरा गुजरात दे विच। यस बैंक की गल करते हैं मुंबई के हैडकुआटर है। इन्हों द्वारा लोन ओवर सिक्योरिटीज़ और लोन इन सेकेंड्स, ये दो इनिशिएटिव दोनों किन्हों के ने, यस बैंक के। एक्सिस बैंक की गल करते हैं, एक्सिस बैंक द्वारा लिबर्टी ओवर सेविंग अकाउंट, लिबर्टी सेविंग अकाउंट फैसिलिटी लॉन्च की गई सी। लिबर्टी सेविंग अकाउंट फैसिलिटी एक्सिस बैंक द्वारा। और दूसरा एक्सा डिजिटल बोर्ड असिस्टेंट भी एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। HDFC बैंक, HDFC बैंक की गल करते हैं हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग है रिलीज़ किया सी HDFC बैंक द्वारा, जिसके लिरिक्स दिते गए सी प्रसून जोशी द्वारा और म्यूजिक दिता गया सी AR रहमान द्वारा। HDFC बैंक द्वारा ही बेसिकली शौर्य क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च किया गया सी। HDFC बैंक द्वारा समर ट्रीट्स कैंपेन भी लॉन्च किया गया सी, याद रखने। ICICI बैंक की गल करते हैं, ICICI बैंक द्वारा होम उत्सव इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सी। इस तो इलावा ICICI बैंक WhatsApp के सर्विस शुरू करने वाला फर्स्ट बैंक बनया सी। अच्छा, HDFC बैंक रिलेटेड एक इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन दे विच तीसरा ऐसा कंपनी बनी सी इंडिया की जिसने एक प्रॉपर इनिशिएटिव कह सकते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट नू क्रॉस किया सी। तीसरी कंपनी और पहला बैंक बनया सी इंडिया का। अगर आप गल करते हैं तीसरी कंपनी, तो पहली कंपनी बनी सी रिलायंस और दूसरी बनी सी TCS। नेक्स्ट है विच इज़ इंडियाज़ मोस्ट सर्च्ड वर्ड ऑन गूगल इन 2020, ऑन गूगल 2020। बेसिकली आपने की किया डिफरेंट कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ द्वारा डिस्कस किए सी, जिस तरीके नाल कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा लॉकडाउन वर्ड नू वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा अनाउंस किया गया क्वारंटीन वर्ड नू। ठीक है, इसी तरीके नाल ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ डिस्कस किया सी। पैंडैमिक वर्ड सीगा जिहड़ा यह किन्ना द्वारा मोस्ट सर्च वर्ड सीगा, ये वैबस्टर डिक्शनरी द्वारा, वैबस्टर मैरियम डिक्शनरी, इस तो इलावा डिक्शनरी.com द्वारा भी। ठीक है जी, हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं रिवीजन दे विच। हुण IPL जिहड़ा वर्ड है, IPL इंडियन प्रीमियर लीग मोस्ट सर्चड वर्ड बने गूगल के उत्ते 2020 का मोस्ट सर्चड वर्ड गूगल द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, केड़ा वर्ड बने IPL। ठीक है जी, अगर IPL की गल करते हैं 13th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया सी। कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? UAE दे विच, UAE दुबई दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। इस तो इलावा 13th एडिशन जितया किसने? मुंबई इंडियंस ने जितया। ठीक है जी, इस तो इलावा मुंबई इंडियंस तो इलावा मुंबई इंडियंस ने कितनी बार जितया IPL? 5वीं बार जितया। इस तो इलावा ऑरेंज कैप इंपोर्टेंट बनेगी, किन्हों दी गई है? KL राहुल नूं दी गई है।
इस तो इलावा होर की डिस्कस कर सकते हैं IPL के रिलेटेड। अच्छा स्पॉन्सर इंपोर्टेंट बनेगा, किहड़ी टीम किन्ना ने स्पॉन्सर किया सी? ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर किया सी। नेक्स्ट है हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वूमेन्स ऑफ द वर्ल्ड। फोर्ब्स द्वारा 100 मोस्ट पावरफुल वूमेन्स ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट जारी की गई। किन्ना ने इसनों टॉप किया है? इसनों टॉप किया एंजेला मार्कल ने। एंजेला मार्कल फर्स्ट ऑप्शन, एंजेला मार्कल द्वारा इस लिस्ट को टॉप किया गया। एंजेला मार्कल कौन ने? एंजेला मार्कल जर्मनी के चांसलर ने। जर्मनी के चांसलर ने जिथे जिमें अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेजिडेंट इस तरीके की पोस्टां ने, इत्थे चांसलर की पोस्ट है। तो चांसलर कौन ने? जर्मनी के एंजेला मार्कल। इन्होंने फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वूमेन्स की लिस्ट को टॉप किया है। दूसरे नंबर पर क्रिस्टीना लगाडे रहे ने। यह कौन ने? ECB के प्रेजिडेंट ने। ECB है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हैड ने क्रिस्टीना लगाडे। कमला हैरिस तीसरे नंबर पर रहे ने। कमला हैरिस की गल करते हैं, यह वाइस प्रेजिडेंट बन गए USA के वाइस प्रेजिडेंट की वोटां दे विच जिते ने और यह वाइस प्रेजिडेंट बन गए। ठीक है जी। निर्मला सीतारमन इंडिया की अगर आप गल करिए, इंडिया के विचों कौन इस लिस्ट के विच है? तो निर्मला सीतारमन इस लिस्ट के विच ने। निर्मला सीतारमन इंडिया के फाइनैंस मिनिस्टर ने, प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्य सभा MP ने कर्नाटका तो। क्वेश्चन पूछा जाएगा किन्नवें नंबर पर रहे ने? ये इस लिस्ट के विच रहे ने 41वें नंबर पर। ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, और निर्मला सीतारमन 41वें नंबर पर रहे। रोशनी नादर मल्होत्रा कुछ दिन पहले भी इन्होंने रिलेटेड आप न्यूज़ डिस्कस की सी। ये इस लिस्ट के 55वें नंबर पर रहे ने। 55th नंबर पर रहे ने रोशनी नादर मल्होत्रा। जी कुछ दिन पहले न्यूज़ डिस्कस की सी, वो की न्यूज़ सी कि यह वैल्दीएस्ट वूमेन की कैटेगरी के फोर्ब्स द्वारा वैल्दीएस्ट वूमेन की एक लिस्ट जारी की गई सी। इंडिया की मोस्ट वैल्दीएस्ट वूमेन तो किहड़ी सी? रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि HCL टैक्नोलॉजीज़ के हैड ने। HCL टैक्नोलॉजीज़ के हैड ने। इस तो इलावा बायोकॉइन के हैड ने जिहड़े उन्होंने नाम सी किरण मजूमदार शो। किरण मजूमदार शो वह भी इस लिस्ट के विच रहे ने। वह रहे ने 67th नंबर पर, और वैल्दीएस्ट वूमेन लिस्ट के विच वह दूसरे नंबर पर रहे सी। बायोकॉन के हैड किरण मजूमदार शो। इन्होंने एंटरप्रीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिता गया सी। ठीक है जी, सारे फैक्ट्स याद रखने। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 5 पार्टीशंस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया। 5 पार्टीशंस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया एक इंटरनेशनल बुक जारी की गई। बेसिकली अपने लिए इंपोर्टेंट ज़्यादा बनेगी क्योंकि इंडिया के बारे काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट्स इस बुक के दिते गए ने। 5 पार्टीशंस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया। इस बुक के ऑथर कौन ने? सैम डेलरैम्पल। थर्ड ऑप्शन सैम डेलरैम्पल इस बुक के ऑथर ने। इस बुक को किन्ना द्वारा लिखा गया? सैम डेलरैम्पल द्वारा लिखा गया। ठीक है जी, एक बुक इन्हों की भी डिस्कस कर लेना, इंपोर्टेंट बुक है। अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय। अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय इन्हों दोनों द्वारा मिलकर एक बुक लिखी जा रही है, को ऑथर की जा रही है। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ। धर्मा द डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। इस बुक को किन्ना द्वारा लिखा जा रहा है? अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय द्वारा अनाउंस की गई है बुक नू। हालांकि रिलीज़ 2022 के विच किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अमीश त्रिपाठी की ही एक होर बुक आप डिस्कस की सी। उस बुक का नाम सीगा लैजेंड्स ऑफ सुहेलदेव। अगर किसी को याद हो, लैजेंड्स ऑफ सुहेलदेव। लैजेंड्स ऑफ सुहेलदेव बुक भी अमीश त्रिपाठी द्वारा ही लिखी गई। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड यूनाइटेड स्टेट डॉलर 300 मिलियन। किहड़े बैंक द्वारा 300 मिलियन का लोन दिता गया? ईजी है कि किहड़े बैंक द्वारा दिता गया होएगा। अगर गल करते हैं पिछले कुछ दिनों की या पिछले कुछ हफ्तों की, तो सब तो ज़्यादा लोन इंडिया को कौन दे रहा है? ADB दे रहा है। तो इसका आंसर भी ADB है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 300 मिलियन लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा तकरीबन 2200 करोड़ कह सकते हैं। किस दे लई? प्राइमरी हैल्थ केयर अर्बन एरियाज़ दे विच प्राइमरी हैल्थ केयर के लिए यह 300 मिलियन का लोन दिता गया। ADB की गल करते हैं। इस तो इलावा भी 2 मिलियन की ग्रांट दी गई है, डिस्कस करते हैं।
तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक मैट्रो मनीला फिलीपीनस दे विच, मैट्रो मनीला फिलीपीनस दे विच हैडकुआटर है। 68 मैंबर कंट्रीज़ ने मसत्सुगु आसाकावा, मसत्सुगु आसाकावा इस दे हैड ने। और इस तो इलावा ADB की गल करते हैं तो ADB के वाइस प्रेजिडेंट का नाम इंपोर्टेंट रहेगा अशोक लवासा। प्रेजिडेंट कौन ने? मसत्सुगु आसाकावा और वाइस प्रेजिडेंट अशोक लवासा ने। बाकी ऑप्शंस के बारे काफ़ी बार आप डिस्कस किया है, दोबारा नहीं डिस्कस करांगे। न्यूज़ में डिटेल भी डिस्कस कर लेने कि ADB द्वारा यह 300 मिलियन के नाल इन एडिशन 2 मिलियन की ग्रांट भी दी गई है। बेसिकली आप डिस्कस किया हुआ है कि जो आप कोई भी इंटरनेशनल बैंक या अगर इंडिया की ही गल करते हैं तो इंडिया किसी कंट्री को कोई अमाउंट दिंदा है तो दो फॉर्म के भी दी जा सकती है, या तो लोन की फॉर्म के या वो ग्रांट की फॉर्म के। लोन यानी कि अगर आप ले रहे हैं या आप दे रहे हैं तो वो आपको वापस मिलेगा। अगर आप किसी को लोन दिता है तो वो अमाउंट आपको वापस मिलेगी, विद इंटरस्ट मिलेगी। ठीक है जी। और अगर आप किसी को ग्रांट दे रहे हैं तो वो आप उसनू रखने लिए दे रहे हैं, वापस नहीं मिलेगी वो। तो इसी तरीके नाल 300 मिलियन का तो लोन दिता गया जो आपने वापस करना होएगा। इसी दे नाल 2 मिलियन की ग्रांट भी दी गई है। यह दी गई है ADB दे जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। ADB दे जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन के विचों, जापान द्वारा एक फंड बनाया गया पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उस फंड के विचों 2 मिलियन की अमाउंट इंडिया को दी गई है टू प्रोवाइड टैक्नीकल सपोर्ट फॉर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए टैक्नीकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए 2 मिलियन एक्सट्रा ग्रांट के तौर पर दिता गया। नेक्स्ट है हु हैज़ बैग्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। फिकी बारे आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 दिते गए ने। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किन्ना दिते? बोथ ऑप्शन 1 एंड 2, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 यानी कि बजरंग पुनिया और एलावनील वेलवरियन, एलावनील वेलरिवन, इन्होंने दोनों द्वारा इस अवार्ड को दिता गया है। दोनों रिलेटेड डिस्कस कर लेने। इन्हों की स्पोर्ट्स इंपोर्टेंट बनेगी कि किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं। बजरंग पुनिया ने जिहड़े रैसलर ने, रैसलिंग तो बिलोंग करते हैं, और एलवनील शूटिंग तो बिलोंग करते हैं। ये कित्थों बिलोंग करते हैं? शूटिंग तो बिलोंग करते हैं। दोनों द्वारा अवार्ड दिता गया है फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के विच। ठीक है जी, मेल और फीमेल कैटेगरी के विच। इस तो इलावा अनिल खुंबले क्रिकेटर से जोड़े फॉर्मर क्रिकेटर अनिल खुंबले, इन्हों की एक कंपनी है टेनविक स्पोर्ट्स, टेनविक स्पोर्ट्स। इस कंपनी ने अवार्ड दिता है बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड, बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड प्राइवेट सैक्टर टेनविक स्पोर्ट्स को अवार्ड दिता गया। अनिल खुंबले की कंपनी है, याद रखनी है। पार्थिव पटेल क्रिकेटर ने इन्हों द्वारा गुजरात तो बिलोंग करते हैं। इंडियन क्रिकेटर रिटायरमेंट अनाउंस की गई है। ठीक है जी। अनिल खुंबले की गल करिए तो अनिल खुंबले रिलेटेड एक कमेटी आप डिस्कस की हुई है। एक कमेटी बनाई गई सी अनिल खुंबले जिसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी। ठीक है जी। उस कमेटी का हैड अपॉइंट किया गया सी अनिल खुंबले को। किस चीज़ के रिलेटेड कमेटी सी? हिंट दे देना, ICC द्वारा वो कमेटी बनाई गई सी। नेक्स्ट है हु विल इनॉग्रेट प्रवासी भारत दिवस कन्वेंशन, प्रवासी भारत दिवस कन्वेंशन टू बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड ऑन 9 जनवरी 2021, 9 जनवरी 2021। बेसिकली प्रवासी भारतीय दिवस कह लिए या कह लिए NRI डे, NRI डे। यह एक दिन है, ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है पहले इस डिटेल में भी डिस्कस कर लेने। इस रिलेटेड काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करांगे और बाकी इंपोर्टेंट ऑप्शन के रिलेटेड भी काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने और कुछ इंपोर्टेंट स्कीम है जी कि काफ़ी डिटेल के अपने लिए इंपोर्टेंट रहेगी, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले इसमें इनॉग्रेट किया जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा। ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? इस दिन 9 जनवरी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 नहीं 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ 1915 105 साल पहले कह सकते हैं। 9 जनवरी 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी आए सी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका तो वापस मुंबई आए सी। ठीक है जी। इस दिन को कमैमोरेट करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज ए NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस।
इस दिन ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम याद रखनी है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिलेटेड 2 न्यूज़ सीगियां एक तो फिट इंडिया साइक्लोथोन का सैकेंड एडिशन लॉन्च किया गया 7 दिसंबर तो लैके 31 दिसंबर तक। इस तो इलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा ही 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स भी अनाउंस किए गए हैं कि 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स एस्टैबलिश किए जाएंगे स्पोर्ट्स कल्चर ਨੂੰ एनकरेज करने के लिए प्रमोट करने के लिए। किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कितों लोक सभा MP ने अरुणाचल वेस्ट तो लोक सभा MP ने। नैक्सट है हैल्थ मिनिस्ट्री रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे कि हैल्थ मिनिस्ट्री ने नैशनल डिजिटल हैल्थ मिशन ਨੂੰ अप्रूवल दी है। नैशनल डिजिटल हैल्थ मिशन यह मिशन है जोड़ा जनवरी 2021 तो शुरू किया जाएगा जिस दे बेसिकली यह जोड़ा मिशन है अनाउंस किया गया सी अगस्त की इंडिपेंडेंस डे सीगा जोड़ा उस दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा स्पीच दे विच अनाउंस किया गया सी। इस दे अंडर की होएगा इस दे अंडर एक यूनीक हैल्थ अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक इंडियन सिटीजन नू हैल्थ अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उस हैल्थ अकाउंट के अंडर परसन फ्री असैस कर सकेगा हैल्थ केयर सर्विसिज का डिफरेंट हॉस्पिटल्स दे विच फ्री हैल्थ केयर सर्विसिज नू लॉन्च किया जाएगा। इसी दे नाल हैल्थ मिनिस्ट्री द्वारा कोविन एप्लीकेशन लॉन्च की गई है टू मोनीटर द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसैस। बेसिकली कि जदों वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके नाल वैक्सीन रेडी हो जाएगी तो उस वैक्सीन नू किस तरीके नाल कित्थे डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है, किहड़े पर्सन नू लगा दी गई है, पूरा डाटा कंट्रोल करने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की गई है कोविन। नैक्सट है रविशंकर प्रसाद का नाम आप डिस्कस किया सी। रविशंकर प्रसाद ने जिहड़े अपने कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने इस मिनिस्ट्री के अंडर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आप डिस्कस किया सीगा पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उस टाइम इसनू अनाउंसमेंट की गई सी हुण इसनू अप्रूवल दी गई है फाइनल अप्रूवल दे दी गई है कि जिहड़ा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनैक्टिविटी है आप डिस्कस की सी कि इंडिया की इत्थे स्पेस की कमी है। अगर आप गल करिए अगर इंडिया इस तरीके नाल है तो इत्थे की है अंडेमान एंड निकोबार के आइलैंड्स ने डिफरेंट आइलैंड्स ने छोटे अगर आइलैंड्स की गल करते हैं तो उन्होंने नाल एक पर्टिकुलर प्लेस है केरला की कोची सिटी है जी इत्थों कनैक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, इत्थों कनैक्टिविटी इन्हां सारे आइलैंड तक प्रोवाइड की जाएगी किस दे नाल ऑप्टिकल फाइबर केबल देना। ठीक है जी, इस प्रोजेक्ट सूँ याद होएगा आप डिस्कस किया सी तो यह जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में फाइनल अप्रूवल दी गई है एक कोची तो लक्षद्वीप आइलैंड्स तक बिछाई जाएगी। इंपॉर्टेंट बनेगा कंपनी केड़ी कंपनी की फाइबर होएगी है BSNL कंपनी का सारा प्रोविजन प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल कॉस्ट है 1072 करोड़ अगले 5 सालों की कॉस्ट है ये बेसिकली जिस दे विच कह सकते हैं कि प्रॉपर अमाउंट भी जी यूज़ करने तो बाद ऑपरेशनलाइज करने तो बाद भी जी अमाउंट आएगी वो भी इंक्लूडिड है और इसनू फंड किया गया है यूनीवर्सल सर्विस ओबलीगेशन फंड द्वारा जी कि बन के तैयार हो जाएगी मार्च 2023 तक। ठीक है जी, लक्षद्वीप नू कह सकते हैं लक्षद्वीप की डेवलपमेंट के लिए इस 4G नैटवर्क कनैक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा रही है ऑप्टिकल फाइबर दे। नैक्सट है कम्युनिकेशन मिनिस्टर द्वारा ही रविशंकर प्रसाद द्वारा ही एक अनाउंसमेंट होर की गई PM वानी दी, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगी PM वानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई असैस नैटवर्क इंटरफेस जिसनों रिकमेंड किया गया सी टैलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मार्च 2017 दे विच। टैलीकॉम ट्राई की अगर आप गल करते हैं ट्राई दे हैड अक्तूबर दे विच आप डिस्कस किए ने अक्तूबर दे विच नवे अपॉइंट किए गए सी। ट्राई दे हैड इन्हां दा नाम दसना है कमेंट बॉक्स दे विच। टैलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गल करते हैं इन्हां द्वारा एक इनिशिएटिव अनाउंस किया गया सी मार्च 2017 दे विच कह सकते हैं।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PM ਵਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ डिफरेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे जिथे कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट्स, अगर अपना कह सकते हैं कि अपना अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो अगर किसी होर का इंटरनेट आपने यूज़ करना है, आप की करते हैं उसका हॉटस्पॉट ऑन करवा लें, अपना आप वाईफाई ऑन कर लें। ठीक है, सिमिलर तरीके का एक इनिशिएटिव है कि एक हॉटस्पॉट केंद्र बना दिए जाएंगे, सेंटर्स बना दिए जाएंगे जिथे जाके एक कोई भी परसन कोई एक फ्री कह सकते हैं बिल्कुल फ्री तौर पर वाईफाई यूज़ कर सकेगा, जिसनों नाम दिता गया वाईफाई असेस नैटवर्क इंटरफेस, PM वानी। नैक्सट है यूनियन कैबिनेट की गल करते हैं, इन्हों द्वारा अप्रूवल दी गई है आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना PM आत्मनिर्भर भारत योजना। क्वेश्चन पूछा जाएगा ANBY की फुल फॉर्म, PM ANBY की फुल फॉर्म की है प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत योजना, जिसके अंडर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंप्रूव किया जाएगा और स्पैशल फंडिंग अप्रूव की गई है, स्पैशल अमाउंट अप्रूव की गई है 2020 तो लैके 2023 तक के लिए पूरे कैंपेन के लिए अमाउंट इंपोर्टेंट रहेगी। बेसिकली अज जोड़े एग्जाम्स आ रहे हैं, इन एग्जाम्स के अमाउंट के बेसिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आंसर रहेगा अपना 22,810 करोड़। 22,810 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। ठीक है जी, इसी के नाल 2020 के लिए जोड़ा अपना 2020-21 फाइनैंशियल ईयर है, इसके लिए अमाउंट अनाउंस की गई है 1584 करोड़। 1584 करोड़ रुपए नोट कर लियो, इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टैक्स मिलीनियर्स टैक्स। ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। अगर गल करते हैं कि वैल्दीएस्ट पीपल उस कंट्री के जोड़े सब तो अमीर लोग ने बेसिकली एक टारगेट भी अनाउंस किया कि 200 मिलियन तो उपर जिन्हों की वर्थ जिन्हों की कमाई 200 मिलियन के एसैट तो ज़्यादा है। ठीक है, वो वैल्दीएस्ट लोगों को मैडिकल सप्लाईज और रिलीफ मेजर्स के लिए एक टैक्स लगाया गया उन्होंने उत्ते मिलीनियर्स टैक्स। एक स्पैशल टैक्स उन्होंने पे करना पएगा जिस दे नाल वो कोविड-19 के लिए अमाउंट इकट्ठी कर सकेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान किस तरीके इनिशिएटिव हैल्थ इनिशिएटिव अगर सारे लोगों को प्रोवाइड करवाने हैं तो अमाउंट की जरूरत है, उसके लिए एक टैक्स लगाया गया मिलीनियर्स टैक्स। किहड़ी कंट्री ने लगाया है? अर्जेंटीना ने लगाया। ठीक है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली अगर आप गल करते हैं इन्होंने नंबर ऑफ पीपल भी दसने कि 200 मिलियन तो ज़्यादा की खपत वाले किन्ने परसन ने, तकरीबन 12,000 परसन ने इन्हों के उत्ते टैक्स लगाया गया अर्जेंटीना कैपिटल ब्यूनो एयर्स है, करंसी इत्थे पीसो चलती है। ठीक है, तो 200 मिलियन पीसो ही अनाउंस किए गए इतने, करंसी भी याद रखनी है। नेक्स्ट है UAE कतर इजराइल, तीनों कंट्रीज के रिलेटेड न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले UAE इंडिया के आर्मी चीफ आप डिस्कस किए हुए हैं, कौन ने? मनोज मुकुंद नरवाने। इन्हों UAE की विजिट पर जा रहे हैं। UAE की विजिट इस तो इलावा रिसेंटली आप डिस्कस किया नेपाल गए सी, तो नेपाल इन्हों ऑनररी रैंक अनाउंस किया गया सी। ठीक है जी, तो UAE की विजिट पर जा रहे हैं और सऊदी अरेबिया की विजिट पर भी जा रहे हैं। रिसेंटली ये बहरेन की विजिट पर भी सीगे। तो फर्स्ट इंडियन बने ने, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ बने ने, ये फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ बने ने जो कि UAE और सऊदी अरेबिया की विजिट ते ने। इसी दे नाल UAE दे विच इंडिया का एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया, फूड सिक्योरिटी समिट। UAE दे नाल मिलके इंडिया की इन्वेस्ट इंडिया, जिसके बारे आप हुणे डिस्कस करके हटे सी, अवार्ड दिता गया UNCTAD अवार्ड। इस तो इलावा CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इन्हों के नाल मिलके UAE ने फूड सिक्योरिटी समिट नूं ऑर्गेनाइज किया। CII के हैड ने उदय कोटक, ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के भी हैड ने, उदय कोटक। नेक्स्ट है कतर की गल करते हैं। इंडिया और कतर द्वारा डिसाइड किया गया कि स्पैशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा इंडिया के इन्वेस्टमेंट की जा सके। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा इंडिया के इन्वेस्टमेंट की जा सके, उसके लिए एक स्पैशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है। कतर कैपिटल दोहा है, ये याद रखनी है। दूसरी गल कतर के रिलेटेड याद रखना है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा कतर। इसी के नाल 2021 के 7 क्लब वर्ल्ड कप भी कतर होस्ट करेगा। फैबररी के इसनूं होस्ट किया जाएगा।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੈਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮੈਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। LMG ਗਨਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਮੈਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨਸ ਨੇ, ਅਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਗਨਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਪੋਰਟ ਇਨ ਸੁਡਾਨ। ਸੁਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸੁਡਾਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਖਾਰਟੂਮ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਪਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਖਾਰਟੂਮ, ਕਰੰਸੀ ਪਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ। डिटेल ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। USA ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਡਾਨ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਬੇਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਗੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਹੈ ਹੰਬਨ ਟੋਟਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਰਟ ਸੁਡਾਨ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਬਨ ਟੋਟਾ ਪੋਰਟ ਚਾਈਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇਗਾ। ਹੰਬਨ ਟੋਟਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ USA ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 8 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ CPC। USA ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ CPC ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈਕੋ ਰੀਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇसी ਦੇ ਨਾਲ UP ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੜੀਸਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਕੋ ਰੀਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇसी ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਈਕੋ ਰੀਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਨਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਭੀਤਰ ਕਨਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਡੇਰਿੰਗ ਬਾਦੀ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਹੈ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਤਕੋਸੀਆ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ।
ठीक है, ताकि टूरिज्म के नाल पैसा इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है जी। हुण इसी दे नाल अगर आप गल करते एक लिस्ट कह सकते एक इंडैक्स जारी किया गया सी, आप डिस्कस किया होया है कि डोमैसटिक टूरिज्म की कैटेगरी दे विच, अगर टूरिज्म की गल करते हैं तो डोमैसटिक टूरिज्म की कैटेगरी दे विच यूपी द्वारा टॉप किया गया सी, यूपी द्वारा टॉप किया गया सी। और फॉरन टूरिज्म की कैटेगरी दे विच, फॉरन टूरिज्म की कैटेगरी दे विच तमिलनाडु द्वारा टॉप किया गया सी। ठीक है जी। टूरिज्म की गल करते हैं तो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर कौन ने? प्रहलाद सिंह पटेल। कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने दामो MP तो लोक सभा MP ने, दामो मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने, याद रखना। ठीक है जी। इस तो इलावा उड़ीसा की स्कीम्स भी आप काफ़ी बार डिस्कस की हुई ने। कालिया स्कीम, पीठा स्कीम, अम्मा घरे स्कीम, सुनेत्र स्कीम, समृद्धि स्कीम, मो सरकार, मो परिवार, मो कल्याण, मो विद्युत और मो प्रतिभा स्कीम्स ने जड़ियाँ उड़ीसा दी ने। रिसेंटली बलराम स्कीम और गरिमा स्कीम भी लॉन्च की गई सी उड़ीसा दे विच। साबुत उड़ीसा स्कीम भी लॉन्च की गई सी उड़ीसा दे विच। ठीक है जी, याद रखनिया ने। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।